السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج کی کہانی بڑی ہی پیاری ہونے والی، کیونکہ یہ کہانی مجھے ایک دوست نے بھیجی تو اس نے میرے ساتھ شیئر کی۔ اس نے کہا کہ یہ کہانی آپ چلاؤ، لوگوں کو سناؤ، بہت ہی کہانی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک سانپ کی جو کہ ایک انسان میں بدل جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس کی زبانی ہوا اس طرح کہ دادا ابو کے گاؤں میں رہتے تھے اور ایک زمیندار کے ہاں اس کے جانوروں کو چارہ ڈالنے کی نوکری کرتے تھے۔ دادا ابو کا گھر گاؤں سے تھوڑا ہٹ کر تھا۔ گھر کے ارد گرد درختوں کے جھنڈ تھے۔ ایک دن اس زمیندار نے ایک بیمار بھینس تحفے میں میرے دادے کو دے دی۔ دادا دادی نے اس بھینس کو خوب سیوا کی۔ اللہ کا کرم ہوا، وہ بھینس ٹھیک ہو گئی۔ بھینس نے دودھ دینا شروع کر دیا تھا۔ گھر دودھ کی اور گھی کی فرمانی ہو گئی تھی۔ ان دنوں کوئی بھی دودھ نہیں بیچتا تھا، سب دودھ بیچنا گناہ سمجھتے تھے۔ ہوا اس طرح ایک دن جب دادی دودھ نکالنے گئی تو بھینس کا دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ بھینس کا حوانہ خالی تھا۔ دادی بہت حیران ہوئی۔ شام کو دودھ نکالا گیا۔ حیرانی یہ کہ اگلے دن پھر صبح دودھ نہ نکلا، حوانہ خالی۔ دادا دادی شک میں پڑ گئے کہ رات کو شاید کوئی چوری دودھ نکال جاتا ہے۔ اس رات دادا نے رات جاگتے گزاری اور دادے کا شک صحیح نکلا۔ سحر سے پہلے دادے نے بھینس کے بولنے کی آواز سنی۔ دادا ابو خاموشی سے بھینس کی طرف بڑھے۔ اندھیرا کچھ ختم ہو رہا تھا۔ دادا ابو نے بھینس کے پاس غور سے دیکھا تو انہیں ایک نوجوان لڑکا بھینس کے پاس بیٹھا نظر آیا۔ دادا ابو تھوڑا اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان حوانے سے منہ لگائے بھینس کا دودھ پی رہا ہے۔ دادا نے غصے سے اسے للکارا۔ دادا ابو کی آواز سنتے ہی وہ نوجوان چونک کر پیچھے ہٹا اور اٹھ کر سر پٹ دوڑ لگا دی۔ گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ دادا بیچارے کے لیے یہ سب بہت عجیب تھا۔ خیر، دادے ابو نے بات صبح پہ چھوڑ دی۔ صبح زمیندار کو بتا کر گاؤں سے اس بندے کو ڈھونڈنے لگا۔ دادی بھی آواز سن کر اٹھ چکی تھی۔ دادے نے ساری بات اسے بتائی۔ دادی بولی، اچھا جانے دو، کسی بھوکے کا پیٹ بھر گیا، یہی بہت ہے۔ رات جاگنے کی وجہ سے دادی کی طبیعت کچھ بہتر نہ تھی۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے دادا ابو زمیندار کے گھر نہ جا سکے اور کام سے چھٹی کر لی۔ اس دن دوپہر کے وقت گھر کے دروازے کی کنڈی کھٹکی۔ دادا ابو نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک خوبصورت شکل کا نوجوان کھڑا تھا۔ دادے نے اسے پہچان لیا کہ یہ صبح والا ہی نوجوان ہے، مگر اس کی خوبصورتی اور آنکھوں کی چمک نے دادے کی زبان بند کر دی تھی۔ سلام کرنے کے بعد وہ نوجوان بولا، میں ایک پردیسی ہوں، کچھ دن ادھر رہنے آیا ہوں۔ میرا آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے، میں 3 دن سے آپ کی بھینس کا دودھ پی رہا ہوں۔ میں اس کی اجرت دینے آیا ہوں۔ میں درخواست کرتا ہوں آپ روز رات کو اپنی بھینس گھر سے باہر درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دیا کریں۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ بھینس چوری ہو سکتی ہے تو میں پوری بھینس کی قیمت سے دگنا زیادہ قیمت ادا کر رہا ہوں۔ آپ بس بھینس کی خوراک کا خیال رکھیں۔ یہ کہ اس نے 3 سونے کے سکے دادے کے ہاتھ پہ رکھ دیے اور بولا، یہ دودھ اور بھینس کی قیمت ہے، اور یہ ایک اور سکہ اس بات کو راز میں رکھنے کے لیے۔ یہ بات تم نے اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں بتانی، کسی کو بھی نہیں۔ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو تمہیں اور بھی انعام دوں گا۔ واپس مڑ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلا گیا۔ دادا ابو جو حیرانگی سے سکے ہاتھ میں پکڑے اس خوش شکل نوجوان کو دیکھ رہے تھے۔ اس نوجوان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد حیرانی بڑی خوشی کے ساتھ دروازہ بند کر کے واپس مڑے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ سونے کے یہ 4 چمچماتے سکے اب انہی کے ہیں۔ انہوں نے ساری بات دادی کو سنا دی، جو حیرانی اور بے یقینی سے سکوں کو دیکھتے ہوئے یہ سب سن رہی تھی۔ خوشی سے بولی، سوچ کیا رہے ہو؟ جلدی سے جا کر بھینس کو درختوں کے جھنڈ میں باندھ دو۔ غرض یہ کہ روز شام کے بعد بھینس درختوں کے جھنڈ کے پاس باندھ دی جاتی اور صبح واپس گھر۔ اس بات کو 15 دن گزر چکے تھے۔ ایک دوپہر 2 جوگی بین بجاتے
दादी के घर के सामने आ पहुँचे और दरवाजे के आगे बैठ गए। दादा अब्बू इस वक्त ज़मींदार के घर गए हुए थे। दादी ने दरवाज़ा खोलकर जोगी को खैरात दी। जोगी दुआ देने लगे। एक जोगी बोला, अगर रोटी मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। दादी बोली, रोटी तो नहीं पकी, मैं दूध ला देती हूँ। ये कहकर दादी अंदर से 2 टुकड़े दूध के ले आई। जोगी ने दूध का घूंट भरा और चौंक कर एक दूसरे को देखा। दादी जो पास खड़ी थी, इससे एक जोगी जो कि उम्र सीधा था बोला, पुत्र, तेरे अलावा घर में कौन कौन रहता है? मैं चाहता हूँ इसका नाम बताए तो मैं इसको विधवा कर दूँ। दादी बोली, मेरा मासूम बेटा, चोर के अलावा कोई नहीं। जोगी बोला, पुत्र, तुम मुझसे छुपा रही है, कोई और भी है तेरे घर वालों के अलावा? तेरी भैंस का दूध पीता है। मेरा इल्म मुझे बताता है कि वो तेरा और तेरे घर वालों का दुश्मन है। तू मुझे बता। दादी जो सीधी सादी थी परेशान होकर बोली, और तो कोई नहीं, एक आज नबी नौजवान कुछ दिन से दूध पी जाता है मगर हमारे घर नहीं आता। ये सुनकर दोनों जोगी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। वही बूढ़ा जोगी बोला, वो कब आता है? तो दादी ने इस वक्त बता दिया। जोगी बोला, वो इंसान के रूम में कोई बुला है, तो हमें इजाज़त दे, हम झुंड में छुप रहे, जब वो आए तो हम इसे पकड़ लें। सादी सी औरत चिराग जोगी की बातों में आ चुकी थी। इसने ना सिर्फ इनको इस बात की इजाज़त दी बल्कि चारपाई भी डाल दी कि इस पर सुकून से बैठो, तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। इधर दादा अब्बू ज़मींदारों को भैंसों को चारा डालने में मसरूफ़ थे कि दादे को इनके नाम की पुकार सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा तो इनको वही नौजवान खड़ा दिखाई दिया। दादा इसे देखकर खुश हो गए। नौजवान ने कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक सांप हूँ और अपनी उम्र पूरी करके रूह बदलने के पे अब कादर हूँ। तुम जानते हो ये सावन का महीना है, इस महीने मेरी मजबूरी है, मैंने हवा में रहना है, इसलिए मैं तुम्हारे घर के पास दरख्तों के झुंड में रह रहा हूँ। बहुत से जोगी काफ़ी अरसे से मेरे पीछे लगे हुए हैं। मैं बस इस महीने कमज़ोर होता हूँ। इस इलाके के जोगी मेरी बू सूंघ चुके हैं, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। बदकिस्मती से वो तुम्हारे घर आ पहुँचे और चालाकी से तुम्हारी बीवी से मेरे बारे में सब निकलवा लिया है और अब वो सैर होने का इंतज़ार करेंगे। मैं दूध पीने आऊँ तो मुझे पकड़ लें, मगर जब तक सैर होगी मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैंने वादा किया था तुमसे कि जब जाऊँगा मैं तुम्हें इनाम दूँगा। घर के सामने एक शीशम का पेड़ है, इस शीशम के पेड़ के पास एक सुराख है। परसों जुमे के दिन फजर की नमाज के बाद अपनी भैंस का थोड़ा सा दूध इस सुराख में डाल देना और ये कपड़ा जिसे तुम्हें कोई आवाज़ दे आए इस सुराख के मुंह पर डाल देना और वापस चले जाना। कुछ देर बाद वापस जाना, तुम्हारा इनाम तुम्हें मिल जाएगा। अब घर वापस जाकर कल सुबह तक अपनी बीवी से या जोगियों से कोई बात ना करना ताकि मैं तब तक दूर चला जाऊं। तुम्हारी बीवी की बजाय अगर ये गलती तुमने की होती तो मैं तुम्हें सज़ा देता, मगर तुम बेकसूर हो। नाम पाकर अपनी बीवी बच्चों को साथ लेकर यहाँ से कहीं दूर दराज के मुकाम पर चले जाना। अब यहाँ तुम्हारा रहना बेहतर नहीं। ये कहकर वो नौजवान मुड़ा और चला गया। दादा अब्बू जो हैरानगी से खड़े सब सुन रहे थे, शर्मिंदगी परेशानी से इसे जाता देखते रह गए। उन्होंने कपड़े को देखा, ये एक सुर्ख रंग का रुमाल साइज कपड़ा था। उन्होंने इसे लपेट कर जेब में रख लिया। दादा अब्बू समझदार इंसान थे, सारी बात समझ चुके थे। मुझसे ये इस दिन दादा अब्बू जान बूझ के शाम के बाद वापस आ गए। दादी बड़ी बेचैनी से दादे का इंतज़ार कर रही थी। दादा को देखते ही सारी बात झट से सुना दी और कहा, मैं तो डर के मारे आज भैंस बांधने भी नहीं गई। जोगी बाबा को भैंस खोल कर दी तो उन्होंने वहाँ बांध दी। आप जोगी बाबा को मिल लो, मगर दादा अब्बू ने थकावट का बहाना बनाकर इनकार कर दिया।
अगली सुबह दिन चढ़े जोगी ने दरवाजे पर आवाज़ लगाई कि नाश्ता पानी दो। दादे ने, जो आज भी ज़मींदार के घर काम करने न गए थे, दरवाज़ा खोला और बड़े गुस्से से जोगी को कहा, जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ, वरना पूरा गांव इकट्ठा करके सजा दिलवाऊंगा। तुमसे पहले लोगों के घरों में सांप छोड़ते हो, फिर पकड़ते हो, इनसे मुआवजा लेते हो। भागो यहाँ से, पता नहीं क्या उल्टी सीधी बात ना कर तुमने मेरी बीवी को परेशान कर दिया है। चलाक जोगी आगे से हंस दिया और बोला, आ गया ना तू भी बहकावे में। मैं आज वो दूध पीने जब नहीं आया तो मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब सुन, मैं कई सालों से इसका पीछा कर रहा हूँ। वो रूप बदलने में मार है, मेरे बड़े काम आएगा। बड़ी मुश्किल से इसकी बू पाकर इसके सिरे पर पहुंचा था, मगर तूने मेरा सारा काम बगाड़ा है। जोगी ने जेब से हल्दी नुमा पाउडर सा निकाल कर दादा बू के आगे हवा में उछाल दिया और कहा, जा, आज के बाद तेरे एक बेटे के अलावा और औलाद ना होगी और ना ही इसके आगे एक औलाद से ज़्यादा होगी। ये सिलसिला तेरी 7 नस्ल तक चलेगा। दादा अब्बू ने ये सुनकर थम्मो से कहा, तू जाता है या मैं आवाज़ दूँ गाँव वालों को। जोगी बड़बड़ाता हुआ अपने साथी को लेकर चला गया। दादा अब्बू ने दादी से भी काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया। शाम को दादा अब्बू ने शीशम के दरख्त के पास जाकर सुराख ढूंढने की कोशिश की, मगर सुराख का नामो-निशान तक न था। जुमे वाले दिन दादा अब्बू ने फजर की नमाज अदा की और शीशम के दरख्त के पास चले गए। वहाँ इधर उधर देखा तो दरख्त के पास एक काफ़ी खुला सुराख नज़र आया। दादा अब्बू ने इस सुराख में भैंस का दूध जो कि गिलास भरकर साथ लाए थे, इस सुराख पर गिरा दिया। दूध गिरते ही सुराख में से अजीब सी बिनबनाहट की आवाज़ें आने लगी। दादा, जो हैरानी और खौफ से यह आवाज़ सुनने में मसरूफ़ थे, भूल गए कि नौजवान ने इनको कहा था कि जब आवाज़ आए तो कपड़ा सुराख पर डाल देना। इसी लम्हे अचानक से काले भेड़ सैकड़ों की तादाद में सुराख से बाहर निकलने लगे। भेड़ों के निकलने के सुराख से निकल की रफ्तार और बिनबनाहट की आवाज़ बहुत तेज़ थी। जब काफ़ी देर भेड़ निकलने के बाद इनकी रफ्तार और तादाद में कमी आने लगी तो दादा, जो बहुत खौफजदा हुए खड़े थे, ने चौंक कर वो कपड़ा सुराख कर फेंक दिया। कपड़ा फेंकने की देर थी, भेड़ निकलना और बिनबनाहट की आवाज़ आना यकदम बंद हो गई। दादे ने डर के मारे घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर ऊपर की तरफ देखा, भेड़ों का गौल होगा मगर कुछ भी नहीं था। सुबह दिन चढ़े, दादा अब्बू हिम्मत करके दोबारा शीशम के दरख्त के पास गए। कपड़ा वहीं पड़ा था। डरते डरते कपड़ा उठाया तो देखकर हैरान रह गए। वहाँ काफ़ी मकदार में सोने के सिक्के पड़े थे और सुराख का नामो निशान नहीं था। खुशी खुशी कांपते हाथों से वो सोने के सिक्के उठाए और घर की राह ली। मकसद ये कि दादा अब्बू ने वो इलाका छोड़ दिया। गुर्बत खुशहाली में बदल चुकी थी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।